आई थिंक बीइंग अ डांसर इन पाकिस्तान एनीवेज, जब आप एक औरत हैं और आप नाचती हैं तो वो उधर ही हम गलत हो गए ना. ब्रो आप क्यों अपनी डॉटर को स्लट बिच और क्यों बुला रहे हो यार? क्यों बुला रहे हो? यू आर शेपिंग दैट यंग इंडिविजुअल. मेरी इज्जत आपकी पूरे माशरे की इज्जत मेरी टांगों के बीच में क्या कर रही है भाई? जो बात है. पार्टियां कौन कराता है? आज सच सच रिवील करे, कौन कराता है पार्टी? देर पोकिंग मी और मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, ठीक है? एंड एकदम से देर लाइक, वो तुम जितना भी मेकअप लगा लो, यू विल नेवर बी एज प्रिटी एज योर सिस्टर. एंड आई एम लाइक, And so many men, in fact, you know, dancers, they came to me and they didn't say how my skills were bad or what. They were like, you look so bad when you dance. hi everyone. Hello, ladies. Ladies, my name is Ladies. Kiara J. D'Souza. I'm here to talk about sensuality, the essence of being a woman, the motherhood that comes with it, the abuse, the boundaries, the fear of being a woman, the vulnerability, the responsibilities that come with it. Hopefully we're gonna be chilling. We're gonna be talking about this. Let's go. Hi everyone. मेरा नाम फाजरा है. All Nice to right. meet you. Namaste. Nice to meet you. We know each other already. But like, Let's Nice just to meet pretend. you. Okay, nice to meet you, girl. What's your name, girl? Spell it. अभी तो बताया फाजरा है. Oh, sorry. I'm Excuse you. just very not present in the moment like that, but masking that I am Yeah. present. और मैं Zoning आज out. आई हूँ पर्दाफाश करने. किसका? सबका. मैं होंगी आज शदीद politically incorrect. Love that. Okay, I am pissed. Let's go. Just like every other Pakistani woman. Yeah. I am just Period. gussa all the time. Period. And I don't care anymore. I am tired. मुझको Done with सोना it. है. Forever. Sleep forever. Guys, और आप यहाँ क्यों आई हैं? That is good. I sorry, what's think- your name, girl? girl. Girl, what's your name? I'm gonna go in. Wait, just give me. आदाब. मेरा नाम दानिया है और मेरा मकसद भी वही है जो आप लोगों का है आज. आई वांना बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट एंड करेक्ट. मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात करूँ कि औरत होने का मतलब क्या है मेरे लिए, और औरत होने का मतलब जो डिफ़ाइन किया जाता है इस मुल्क में उसके बारे में भी बात करें हम. और हर चीज़ आई थिंक इट्स जस्ट रियली ब्यूटिफुल. आई ऑल्सो विद द सेम लाइक जितना हम इस बारे में बात करें कि औरत होना कितना मुश्किल है, आई थिंक ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ इट. इट्स yes. जस्ट I just want to talk about how beautiful it is and to feel things. Oh my god. Having a full human experience. Yep. To know that Basically. people feel things. Wow. Wow. Yeah, Wow, it's just crazy. Privilege. You know. इसी नोट पे इसी note पे let's इसी note पे, let's talk about आपके लिए क्या है औरत होना? talk about womanhood. let's talk about womanhood. I Kiara. am getting off a definition Okay, on Google. on Google, guys. Okay, Google is saying this. Let's see कि Google का opinion politically correct है या incorrect. The quality is considered to be natural to or characteristic of a woman. The state or condition of being a woman. What do you feel is a state or condition of being a woman? I think there's a lot of baggage that comes into being a woman. लेकिन गूगल कितना पॉलिटिकली करेक्ट हो रहा है ना अपनी तरफ से. मुझे Yeah, लगा सारा सोशल मीडिया बड़ा एल्गोरिथम्स बड़े राइट विंग से हो गए हैं. पर बड़ा इंक्लूसिव था कि आपको जो लगता है कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसका ये मतलब हो सकता है कि ये काफ़ी डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन अगर आप थोड़े मतलब सेक्युलर से कंट्री में, आप यूरोप में बैठे हैं तो फिर मतलब ठीक है, ट्रांस भी हो सकते हो आप नॉन बाइनरी भी हो सकते हो अगर आपको फील हो रहा है औरत. सो गोइंग बैक, क्यारा, व्हाट इज एन औरत टू यू? Aurat to me is fierce. Fierce. A baddie. Bring ya down. A thari. Choose and pick that word and keep it for the rest of my life. Thoughty. Thati. Yeah. Thoughty. Girl, a woman. Thoughty. Because we have thought.
Wow, guys, we feel The feelings, we have emotions, thoughts. the emotions that come in with being a woman, the judgment, the judgment Yeah. that comes in with being a woman. What's the harshest thing you faced being a hip hop dancer? आई थिंक बीइंग अ डांसर इन पाकिस्तान एनीवेज, जब आप एक औरत हैं और आप नाचती हैं तो वो उधर ही हम गलत हो गए ना कि Yep. आप एक औरत हैं, Yep. ऊपर से आप नाच रही हैं। पर्दा करें. पहले तो आप औरत हो गई, आपकी गलती सबसे बड़ी है। दूसरी, आप नाच रही हैं, और तीसरा ये कि आप कोई कन्वेंशनल डांस फॉर्म नहीं कर रही हैं, आप Right. कथक नहीं कर रही हैं, यू आर नॉट लाइक Yes. काली काली जनाना नहीं है ना। आप वो भी नहीं है। मतलब जो Hmm. लास्ट उनका स्टैंडर्ड है ना एक औरत को डिफाइन करने का, वो ये है कि वो ग्रेसफुल और उसकी मूवमेंट में ग्रेस Quiet, हो, timid. यू नो। हाँ, लाइक बोले तो बिल्कुल. खुश Yes. गुफ्तार हो और Yes. बोले तो फूल झड़ें, और Yes. जब वो अपने जिस्म को लहराए तो ऐसा लगे कि पीक हवा है। सबकॉन्टिनेंट हाँ, फेमिनिटी। वो ना दैट इज व्हाट। और फिर तो वो भी नहीं है आई एम अ हिप हॉप डांसर, दैट्स लाइक you know, like just like वेरी मैस्कुलिन। it's a masculine form. And वो मुझे बहुत टाइम लगा to find my own style and to add and mix and to accept my own femininity. उसमें भी मुझे टाइम लगा कि मैं Yeah. वो accept करने में। लेकिन to be a hip hop dancer I think it was really hard in Pakistan, क्योंकि पहले तो as a dancer उन्होंने accept नहीं किया, फिर दूसरा ये कि ये अगर कर भी रही हो तुम तो ये क्या लड़कों की तरह मूव, क्या लड़का बनने का शौक है यार तुम्हें। Literally. तो वो हिप हॉप डांस को इट्सेल्फ उन्होंने एक जेंडर दे दिया है पाकिस्तान में, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान ही, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो बस फिर यू नो इट वाज नॉट इजी, द जजमेंट दैट केम विद इट, एंड द जजमेंट not just to me to like for choosing to dance, but also people said so many things about my body because they thought कि अगर मैंने अपने लिए एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है which is dance, which is that I'm comfortable with my body, Yeah, तो उन्होंने yeah. उसी पे मुझे टार्निश करने की इतनी कोशिश की कि oh my you like you know you look so सेलिंग योर bad when बॉडी you वाला dance. सारा जो एक Yeah. So many people came and said this to me, and so many men, in fact, you know, dancers, they came to me and they didn't say how my skills were bad or what. They were like, you look so bad when you dance. आप औरत हो So कि how अगर is that परफॉर्मेंस, like, you know, अगर girl, अगर आप Girl. औरत हो कि परफॉर्मेंस choreographers. आर्टिस्ट हो ना, लाइक अगर आप औरत हो कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हो ऑफ एनी टाइप, वेदर यूर एन एक्टर, अ मॉडल, अ डांसर, अगर पॉइंट इतना आता है अगर आप स्टेज पे आते हो या आप सेंटर ऑफ अटेंशन बनते हो एट सम पॉइंट, तो इट्स कंसिडर्ड सो बैड कि मतलब वो औरतों के साथ वही कॉन्टेशन लगाते दैट यू सेलिंग योर बॉडी, you're selling how मतलब pretty you are or blah blah blah, और वो चीज़ें नहीं कंसिडर करते कि इसमें भी स्किल लगती है। Period. एक्टिंग में स्किल लगती है, सिंगर्स होते हैं उनमें स्किल लगती है, आप और डांसर हो, आपने टाइम लगाया, आपने मेहनत की है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी। भाई हमारे मुल्क में तो इट्स सो नॉर्मल। आपका काम क्या है औरत एज एन औरत? व्हाट इज़ योर रोल एज एन औरत? केयर गिवर, खिदमत करो आप अपने शौहर की, नस्ल आगे बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, सक्सेशन के प्रॉब्लम्स ताकि सॉल्व हो, बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो, नॉट इवन बेटा बच्चे, पैदा बेटा करो। पैदा करो। और सबकी फीलिंग्स को फील करो। मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगी। हाँ, यू नो नहीं। व्हाट्स द फर्स्ट टाइम जब आपने किसी और की के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील किया, यू नो, यू फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस फीलिंग्स, बिकॉज हमें बचपन से ही ये कंडीशन किया जाता है कि ओ ये नहीं, बाबा को बुरा लगेगा, देखो भाई को बुरा लगेगा, अम्मा क्या सोचेंगी, और इतना ज़्यादा हमें कंडीशन किया जाता है, वी फील फॉर अदर पीपल। हम लोग बचपन क्या से ही सोचेंगे, लोग क्या लोग क्या सोचेंगे। आप You have ऐसे to. बैठे, डू नॉट, यू कैन नॉट स्प्रेड योर लेग्स ओपन, यू कैन नॉट dress you cannot dress a certain way, you have to cover yourself, you have to be modest. That's what women are in our society. We have to be modest. We are taught as kids to be that way, to be a certain way, not to be yourself. अगर आप society के norm से drift कर रहे हैं तो फिर you're useless. Yeah, then you're not a woman. You're not a part of society. They cast you out. You're outcast. आप हो ही नहीं. आई थिंक होता पता है क्या है, इवन बिफोर हमें ये कहते हैं कि तुमने कपड़े ऐसे पहने या ऐसे नहीं पहने या वट एवर, आप लाइक एटलीस्ट फॉर मी, आपको रियलाइजेशन होने लग जाती है कि स्पेशली इफ़ यू हैव लाइक अ मेल सिबलिंग, अगर कोई
मेल सिबलिंग या इवन मेल कजन्स को भी आप देख रहे होते हो दैट दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली, लाइक यू माइट बी 5 और 6, जब पहली दफा आपको बोला जाएगा कि भाई को पानी पिला दो। क्यों? भाई भाई ना मुझे 15 कौन पानी 16 पिला रहा साल है? का आपका Who's कजन है, given me WhatsApp? भाई भाई को पानी फुटबॉल पिला खेल दो। के जना 10 दफा टांग तोड़वा के आ जाता है भाई उठ के पानी नहीं पी सकता खुद। और अगर आप ये बोलोगे ना तो वो होगा कि नहीं देखो भाई हैं बड़े हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड विच इज़ अगेन मतलब फाइन, बट भाई आपको कभी नहीं देगा उठ के पानी। भाई माँ को, उसको अपनी माँ को देते हुए मौत पड़ती है। इट्स द comparisons you see ना, आपको फील होने लग जाता है ऑलरेडी कि ओके नो देयर इज समथिंग डिफरेंट विद मी, कि ये वाली भी छोटी बातें होती हैं कि फॉर एग्जांपल बोटी लिजिट एज स्मॉल एज दिस, के आखिरी बोटी किसको जाएगी, Oh my भाई को God. जाएगी, मामू को जाएगी, मामा को जाएगी, और लेग पीस किसके ठीक पास है, जाएगा? लेग पीस किसके लेग पास पीस जाएगा? ये बहुत नुआंस डिटेल है ऑफ आवर लाइव्स Yeah, कि खाना खाते हुए खाना पहले किसको सर्व होगा। yeah. Yes. The men. The men. औरतें जलील हुए, खाना बनाएं, बनाएं। घंटों घंटों दावतें लगाएं, सब कुछ करें, फिर भी पहले कौन खाना खाएगा? मर्द खाना खाएंगे, क्योंकि मर्द वैसे भी किस लिए आते हैं किसी भी फंक्शन पे? औरतों को ताड़ने और To खाना eat. खाने। And they don't even eat. Yeah. We are the ones who eat. Yeah. Quite literally. We put time in like everything. They just show up like that and they think that they own the नहा world. के आ Actually, जाए बड़ी बात होती है। नहा वो भी बहुत बड़ी बात होती है। Yeah. You. Yeah, can we like come on? I also want to talk about how like हम ये सारी बात जो कर रहे हैं कि हमें टोन डाउन किया जाता है और हमें certain way में बताया to जाता है कि shrink आपको ये- ourselves. like we have to also like Suppress. बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि देखें एक अच्छी लड़की एक लड़के को कभी ये नहीं बोला जाता एक अच्छा लड़का बनने के लिए आपने ये करना है। Yes. आई डोंट They थिंक कि don't वो teach our boys. लाइक दैट कि और एक अच्छी लड़की की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज एन अच्छी लड़की, और बीइंग नाइस, एंड व्हेन यू आर टोल्ड दैट यू हैव टू बी नाइस यू हैव टू टोन योरसेल्फ डाउन, यू हैव टू सिट अ सर्टेन वे एंड टॉक अ सर्टेन वे टू बी कंसिडर्ड अ गुड गर्ल, एंड वी आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन बचपन से ही हमें कि बेस्ट वाली जो है Right. how we're like let's talk about this. I want Yeah, to all ask the कि female we're- cousins and like आपस में जो कंपटीशन है sisters, yeah. वो बचपन से इंस्टिल्ड है हमारे Yeah, अंदर yeah. के जो I बेस्ट किसका रहे ना रिश्ता इसमें अच्छा हो रहा है, से। किसको जॉब पहले मिल रही है, और वो तो ऐसे नहीं कहती, वो तो ऐसे कहती है, वो तो दुपट्टा करती है, वो तुम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मी एंड माई सिस्टर, लाइक वी आर वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड वी आर वेरी लाइक chill with each other and very accepting of it कि अच्छा तुम ऐसी हो या तुम ज़्यादा religious हो, I'm not that religious, or maybe I look at things a different way and you look at things a different way, and that's fine. But you would see like family members pitting us against each other. Recently we were getting ready to go that's somewhere. the harsh truth. We were getting ready to go somewhere, and this one family member, they love to poke everyone and just like give everyone like a really hard time and make people miserable. They just have so much joy in that. We all have that one person. Yeah, true. So I was getting ready and they were like badgering us anyways कि इतना तैयार क्यों हो रही हो, इतना तैयार क्यों हो रही हो, इतना क्या तैयार हो? मेरा दिल कर रहा है, मेरी मर्जी भाई, मैं तैयार हूँ ना हूँ। जब मैं तैयार नहीं होती तब मसला होता है आपको, जब मैं तैयार होती तब मसला होता है आपको। तो खैर मैं हो रही हूँ एंड दिस पर्सन टर्न्स टू मी, क्योंकि देर पोकिंग मी और मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, ठीक है, एंड एकदम से देर लाइक ओ तुम जितना भी मेकअप लगा लो यू विल नेवर बी एज प्रिटी एज योर सिस्टर। Oh एंड आई एम लाइक what am I like, मेरी हंसी छूट गई because I was like, you think that is going to like that will be the thing to finally get me, like I don't give a shit. Ew. ठीक है, और उस मतलब वो अपनी तरफ से प्यारी है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, उसका अपना Definitely. सीन है, ठीक है, मेरा अपना सीन है। द कंपैरिजन इज सो इनसेन कि लाइक वो बॉन्ड्स भी नहीं बनने देते आपस में। हाँ, I'd like to add something. I had अभी पिछले महीने I was eating at my mom's, right? And मैं बिल्कुल थकी हुई हूँ, मैं इंटर्नशिप से आई हुई हूँ वापस, मैं इतने सारे घर की चीज़ें करके I'm chilling, I'm having dinner, टांगे ऊपर करके मैं बैठी हूँ, बिल्कुल मैं टांगे ऊपर करके बैठी हूँ। And she goes, बेटा सही से बैठो, खाने को इज्जत दो। मेरी अम्मी जान, मेरी जान, खाने में किसने इज्जत डाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आई थिंक जनरेशनल ट्रॉमा एंड दीज थिंग्स आर सो इनबिल्ट, सो इनबिल्ट के
पता नहीं होता है what is right, what is wrong. फिर people try to like sort of go with this thing कि बेटा खाने को इज्जत दो, खाने में इज्जत है, you have to sit a certain way, you have to behave a certain way, you have to be quiet, आवाज़, tone, do not raise your voice. How dare you raise your voice at me? How dare you raise your voice at me? फिर वो और चलाने शुरू हो जाते हैं. हाँ, आई थिंक कि ये तो डेफिनेटली इन एवरी वे वी आर टोल्ड टू टोन आवरसेल्व्स डाउन. और आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि खाने में इज्जत किसने रखी है. और सिर्फ खाने में नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हमें bra strap, आपकी आपके bra strap अगर में दिख इज्जत, गई ना आपके तो bra strap में इज्जत उनका हो जाएगा. क्योंकि नॉट ये नहीं हो you सकता. क्यों can't. क्यों एक एक कपड़े का एक Yes. पीस एक A piece of cloth. मेरा a piece of cloth, Yes. why does it it hold? define my इज्जत Yes. My या फिर कि value. my value or Yes. my क्योंकि or आप who उनको I याद am दिला as a देते हो ना, person. आप उनको याद दिला देते हो कि आप एक औरत हो. उनका You have illusion, boobs. even if आप Boobs. उनको Boobs. Love even views. if for like 2 seconds they look at you as a human being, वो आपको पूरे इंसान की तरह देख रहे हो rather than just an object. Property. Object, property भी Object. वही होती है ना, it's an Object. object. You think it's disposable, hence कि शादी करके ये करना, शादी करके वो करना and all of those things. तो women are considered disposable. बड़े होके बिल्कुल, क्या बिल्कुल. बड़े होके क्या करना है? आपने बड़े होके क्या करना है? शादी करूंगी और फिर एक हस्बैंड होगा और बच्चे होंगे 2. और फिर उनकी जो मम्मा होंगी ना, उनका बहुत ख्याल रखना है. Love it. और फिर जो हमारे बच्चे होंगे उनका भी बहुत ख्याल रखना है. और उनके पापा का भी ख्याल रखना है मैंने ही. और उनके भाई भी हैं 3, वो भी अब मैं ही ख्याल रखूंगी उनका भी. Yes. So quickly I want to talk about I also want to talk about the beauty standards that come with it all. And बचपन में मैं अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आप लोगों की तरफ like how about we all share it कि आई डोंट नो आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंस है बड़े होते हुए. पर मेरे लिए क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तो हम पता ही है कि एक मेल गेज की वजह से हर चीज़ एक डिफाइंड है इन दिस वर्ल्ड. यू नो, दिस लिपस्टिक लुक्स गुड, हेयर स्टाइल लुक्स गुड, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं औरतों के लिए. तो मैं इतना ज़्यादा आई वॉज ऑलवेज रेबलिंग लाइक आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मैंने तो बगावत ही करनी है. अगर लाल सुर्खी लगा के मैं लड़की लगूंगी तो मैंने नहीं लगना लड़की. Yep. Yep. मैं हेलो Yep. नहीं, लाल सुर्खी अगर मुझे लड़की बनाती है तो लाल सुर्खी जाए भाड़ में. Yep. मैं नहीं लगाऊंगी लाल सुर्खी. ना मैं लाल कपड़े पहनने वाली हूँ, ना मैं पीली चूड़ियाँ पहनूंगी. मैं स्याह लिबास पहनूंगी. और मैं बहुत आपसे बात भी ऐसे करूँगी कि मैं एक मुझ मतलब टू एक्सेप्ट दैट फेमिनिन साइड आई वॉज ऑलवेज सो अगेंस्ट इट. क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये औरत होती है और मैंने हमेशा कहा कि आपने जो मुझे कहा है ना कि ये औरत है, मैं वो औरत नहीं बनूंगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे जो औरत बनना था मैं वो भी नहीं बन पाई. वो आपको फेमिनिनिटी से नफरत करा देते हैं ना. वो आपको इतना, आपको बचपन से ना इतना डर में रखते हैं अपने आप की. Fear. Let's talk about fear. जस्ट बिकॉज आप औरत हो आपको इतना डरा के रखते हैं अपने आप से Oh my God. Yeah. कि यू कैन बी फेमिनिन बट डोंट बी टू फेमिनिन, बिकॉज फिर आप गलत तरह की अटेंशन आपके ऊपर ओ आएगी. माय गॉड, ओ माय गॉड, फिर वी आर तो डन. आप उससे इतना हेट करने लग जाते हो. एंड एट लीस्ट फॉर मी आई वाज लाइक आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ डिवोर्स. ठीक है, तो आई हैव सीन लाइक हाउ माय मॉम बी लाइक माय डैड and be my mom at the same time, doing a job, taking care of the house, taking care of us. और मैंने भी ना हमेशा ये देखा कि because I was her daughter, my dad did not give a shit. Yes, हम हैं fatherless, at least मैं हूँ fatherless girl. Any issue, excuse any me. problem? Me Before too. you comment it. या फादरलेस बिहेवियर अब्बा Yes, नहीं है ना this is इनके. fatherless behavior. तो ये मेरा कसूर है. लेट्स टॉक अबाउट दैट कि जब भी हम मर्दों को क्यों नहीं पकड़ते कि भाई तुम लोगों ने- तुम्हारा बाप नहीं है तो उस वजह से तुम ये कर रहे हो. तो एक औरत को क्यों बताया जाता है? मतलब जस्ट वांट टू टॉक. ये जो मेंटालिटी है दिस कि ये आप यू आर अ सर्टेन वे बिकॉज यू डोंट हैव अ डैड. कैन So वी टॉक yeah, अबाउट I दैट? am. सो या और तो ये किसका कसूर है? गलती किसकी है ये इसमें अगर किसका मेरा बाप कसूर नहीं है? था? ये मेरा कसूर तो नहीं है. डैडी इश्यूज में मुझे क्यों वो आपको क्यों Yeah, लगता है yeah, कि yeah. व्हेन आई से आई हैव डैडी इश्यूज आई मीन
come and choke me in the bed. No, Every I'm Pakistani man, Hello. every Pakistani man has severe mommy issues. So men Real, are no real. one to sexualize Real. or trivialize daddy issues. Like But- fuck off, तुम लोगों को भी पापा ने कभी एक दफा ट्रूली झप्पी दी होती ना और कहा था बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू You wouldn't be प्राउड ऑफ यू, तो तुम्हारे भी आधे मसले सॉल्व होते, ठीक है ना? You're not better than us. Girl. You're actually more fucked up than we are. Girl. ईद And I की wish ईद you हक would just मिलती get है. better, man. Just get better. Just try. Men, Yeah. women don't hate men. We just want you to fucking Be the give a best shit. version of of yourself. yourself. They क्यों don't. जीना है They तुमको don't. दुनिया Like, से? face your traumas, They face said your they shit. cannot- Think those thoughts, those hard thoughts. Think it. यार होता है uncomfortable. Thoughts. प्लीज बैठो अपने साथ, अब खुद से बात करो, जानो कि क्या मसला है आपके साथ, और डोंट जस्ट कीप डिनाइंग योर सेल्फ कि Yeah. नहीं मैं स्ट्रांग हूँ और ये मेरे साथ नहीं हुआ. Strong. मे बी स्ट्रांग Strong. मैं बहुत स्ट्रांग माचो मैन हूँ, बट डू यू नीड, आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू, आई एम योर प्रोवाइडर, आई एम योर Rider प्रोटेक्टर. provider. But also you do what I say. But You do what I I say. say, and And I do I what come you say home. sometimes, you know, only when my mama allows. Yeah, only. Yeah. Yaar, can we talk Mama's about how boy. Mama's boys? Can we talk about Mama that? boys, mama girls, I will talk every. You start. Ask question. Come on, ladies. Let's fucking go. Next question. What next question? Next question. Okay. थोड़ा Question, yeah. question, question. Energy goes up, guys. Yeah, I think Let's center ourselves just a I bit. want to talk about being soft in the world that taught us to be tough. जैसे कि मैंने अभी बात की, हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात की थी, मैं दोबारा I बैक think इन हम कर थोड़ा आगे जंप कर रहे हैं. I want to talk more about this mother stuff. मुझे एक बहुत जोर से क्वेश्चन आया, sorry. आ जाओ यही चाहिए. This is what we need, girl. Guys, have Bring you it. ever experienced like the messed upness of matriarchy when a woman does get power and she abuses the hell out of it? Yeah, because she has to, because she never got क्योंकि that power. पता है नहीं, बात इतनी सी है, जो मैंने एटलीस्ट पावर में देखा है कि लाइक यू गिव इट टू एनीवन, एक दफा वो पागल तो होता है. 100%. इस पे और मतलब वो वाली भी बात है कि अगर आप माइनॉरिटी हो, आपकी जो है ना वैसे ही बहुत लाइफ ने ली हुई है, ये वो सारा कुछ आपको नहीं, बहुत घुट घुट के बेसिकली अगर This जीना is पड़ता very है. general. This is very general. Let's be a little नहीं, more specific. I'm coming to that. Okay, I'm so sorry. It's okay. Womanhood, guys. You forgive each other. You respect each other's boundaries. So like I have seen mothers destroy generations of family, और वो उसी patriarchal तरीके में कि वो वही patriarchal rules को use करती हैं अपनी power को assert करने के लिए, to be like कि I am better than you, ठीक है, you will never reach this idea of femininity that the man needs you to be, and because I am that, so I get to dictate how everyone is and how everyone lives and blah 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 blah. कि औरतें किस तरह पेट्रियार्की के रूल्स को यूज करती हैं एक दूसरे को तंग करने के लिए और सब्जुगेट करने के लिए. बिकॉज हम लोग ना बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस चीज़ों को थोड़ा सा ट्रूली ब्रेक कर रहे हैं. अगर आप फेमिनिज्म और उस चीज़ को भी उस तरह से देखो ना, तो आई ऑल्सो गेट वेयर people we do get really bitter and toxic. Yeah. And we're bound to, it's natural for us to, but वही चीज़ होती है that you have to come back as well. So how do you guys, like, have you guys observed any bitterness and when it comes to women being with women in any kind of role, चाहे आपकी माँ का रोल हो, चाहे फ्रेंड्स का रोल हो, चाहे प्रोफेशनली? I think for me, it's like straight up hate. Straight up hate. From one woman to another, from one lady to a child. To a child. Bro, आप क्यों अपनी daughter को slut, bitch, whore क्यों बुला रहे हो यार? क्यों बुला रहे हो? You are shaping that young individual. You are shaping that young individual. You're teaching that little girl कि भाई आपकी तो कोई रिस्पेक्ट है नहीं. आपको कभी भी कोई भी आगे चंड मार के चला जाए, हाँ. आपको बकवास करके चला जाए, आपकी इज्जत पे उंगली उठा ले, चाहे आपने कुछ भी पहना हुआ है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो. I have seen young girls, like little girls. I know people have very close friends, in fact, जिनकी अम्मा would allow the tuition teacher to just रख के
रख के दे दो ब्रो. That's ये तो very बेचारे normal. बॉयज के साथ भी That's होता है, मदरसों normal, वाला that's भी so जो शिट normal. है सारी. आप सोचो उनके घर में ही हो रहा है. Yeah. बेटी ने आपको आके बोला है कि ब्रो ट्यूशन वाले अंकल ने मुझे मोलेस्ट किया है, बाकायदा मोलेस्ट किया है. उसके अलावा यू आर लाइक ओ getting manipulated by the man. You're getting manipulated by the man, the male tuition sir, and being like, oh, ये तो झूठी है bro. अपनी बच्ची पे आप you're not believing in her, your child. It's so fucked up यार कि आप मार रहे हो, आप yeah. पीट रहे हो अपने बच्चे को यार. मतलब सोचो, just violence, straight up violence coming in from toxic, dysfunctional homes, just broken families. I think even not just lower class, middle class, or upper classes. I think higher class women who don't have a reason, not a reason actually. They don't have anywhere else to go, so they stay with their abuser. They stay with that person who is not treating them right. यार अपर I क्लास ने भी अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स लगाए हुए होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर लाइक फाइन विद कि अगर उनकी नौकरानी को उनका हस्बैंड पीट रहा है, Not ठीक even है, that. What if, उनको like- तभी याद आता है जब उनको फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड व्हेन दे गेट अब्यूज्ड, ठीक है. बट बात ये है कि मतलब अगर साथ वाले घर में, हैव यू नोटिस दिस एज वेल कि क्या हर घर में ऑलमोस्ट अब्यूज होता है. एटलीस्ट इवन इन माय मोहल्ला, वी लिव इन दिस फैंसी एस मोहल्ला इन, ओके, और आपको रातों में ऑलमोस्ट हर घर से आवाज आ रही होती है कि किसी औरत को रैंडम टाइम ऑफ द डे जो है ना कौन सी मारपीट ऐसी हो रही है, आवाज़ सब है? कुछ हो रही है, और एज अ सोसाइटी आप तब नहीं इंटरवीन करते. अब यही वाली बात कि इफ़ यू डिड गेट मोलेस्टेड और हरास्ड, आप कभी भी अपने घर वालों को ट्रूली बता नहीं सकते. इवन तो बचपन से वो आपकी ट्रेनिंग ही इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि कि ये आप चीज़ लो, आपके साथ आप ना लो. हो, नहीं ये ना हो कि है तुम्हें कोई हाथ ना लगा ले, बच्ची की इज्जत, बच्ची की इज्जत, बच्ची की इज्जत. बट द डे समथिंग डज हैपन, चाहे वो किसी ने आपको रोड पे देखा है या आके अपने घर में आपके साथ कुछ हुआ है, नो वन विल टेक अ स्टैंड फॉर यू. Everyone will tell you to shut up, पी And you लो, know what? And you know और what? लोग Yeah, uncomfortable ना हो. हाँ, the men out there who aren't speaking up, you guys who aren't speaking up are the problem. Straight up. 100%. Straight up, you're the problem. If you're not contributing to some kind of goodness or some kind of, or standing up for the girl, your sister, your mother, your girlfriend, your best friend, and your bros are just like, नहीं यार, But चलता even है, girls bro are code. like this. This is not just boys. There are even girls that are like कि भाई हमारा दोस्त है तो हमें क्या पता हुआ था या नहीं हुआ था या ऐसे या वैसे, मेरा तो भाई है, मेरा तो कजन है, मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा हस्बैंड कभी नहीं कर सकता, उसी की गलती होगी, उसी की गलती होगी. मतलब या फिर ये कि बस स्ट्रेट अप डिनायल की, या फिर डिनायल भी नहीं. मोस्ट ऑफ पीपल आर लाइक यार देखो हमारी दोस्ती है, हम अपना नहीं खराब करना चाहते. The amount of times I have seen girls, and even if this has happened to me, I might have done it to someone as well at some point. जब आपको internalized misogyny आपके अंदर होती है, उस वक्त आप नहीं because you have to see that it's like a learning curve as well. आप खुद बड़े हो रहे होते हो और आप साथ साथ देख रहे होते हो, fuck ये नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, या shit ये तो मेरी प्रोग्रामिंग हुई हुई थी एंड मैं प्रोग्रामिंग पे चल रही थी. So you see girls that are like कि ये हमने like मैं जेंजी में तो बहुत ही ज़्यादा है ना कि वो हमने पार्टी पे जाना है, हमने उसके साथ पार्टी करना होता है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कह सकते, और अगर मैं उसको बोल दूंगी तो फिर मुझे नेक्स्ट इनवाइट नहीं आएगी, तो ऐसे नहीं होगा, नहीं वैसे नहीं होगा. So all of these things matter way much to everyone. जब कोई सुसाइड करता है ना, जब कोई बिल्डिंग से गिरता है, जब कोई मतलब जब तक इधर तक बातें नहीं पहुंचती ना, तब तक नो वन गिव्स अ शिट. और इसके बाद सारे जो है ना इंस्टाग्राम पे पोस्टें भी लगाना शुरू कर देते हैं कि ओ प्लीज चेक ऑन ईच अदर एंड डिप्रेशन एंड ये और वो. बट ये लाइक वही एक दो हफ्ते बाद वो इट गोज बैक टू हाउ इट वाज. नो वन गिव्स अ शिट unless it happens to you. No one gives a shit until it happens to you, and it will happen to you at some point if you keep ignoring all of these things and you don't listen to women not believing women, and women not listening to women. That's so, yeah, I hate But that. all of that, I do agree to both of you and whatever you just said. But I've been wanting to say, again, when we talk about this, we really need to talk about the fact that it's not their fault. Because we are here to break that generational trauma, and we are trying because we saw that and we've been through that. We got abused, and that's why we have balls. We're so brave to come here, and we also live in a time where we have more resources than them, and we have more, like, let's be very honest, हमारे पास आवाज़ है
और लेट्स टॉक अबाउट ऑल्सो कि उन्होंने कितना परसेंट कुछ ना कुछ तो किया है, तो तब जाके हमें इतनी आवाज़ मिली है कि हम यहाँ पे हैं. अगर हमारी माँओं ने कोई जनरेशन ट्रॉमास ना तोड़े होते तो शायद, मैं तो अपनी पर्सनली अपनी स्टोरी में मुझे लगता है कि देर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स मेरी अपनी माँ के साथ जो मेरा रिलेशन था. क्योंकि पहले मैंने उनको हमेशा अपनी माँ की लाइट में देखा था कि शी वॉज माई मदर, शी हैड टू मेक द राइट डिसीजन फॉर मी. बट वन आई मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस, और मैंने देखा कि एक औरत की ज़िंदगी एक्चुअली में क्या होती है अकेले जब वो रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ ब्रोकन हाउस. एंड देन जब मैंने देखा कि एक औरत अकेली उसकी ज़िंदगी क्या होती है, एक औरत को हमेशा सिखाया जाता है कि उसको माँ बनना है, उसको एक अच्छी माँ बनना है. तो मैंने भी एक्सपेक्ट किया अपनी माँ से कि उसको एक अच्छी माँ बनना है. मैंने क्या उनसे बेटर एक्सपेक्ट कर लिया, लाइक मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया कि एक अच्छी माँ बनना है जो शायद एक मर्द करेगा. मैंने भी वही एक्सपेक्ट किया कि एक अच्छी माँ बनना है. बट आई हैड टू मूव आउट एंड आई हैड टू अंडरस्टैंड वही वाली बात, आई विल सर्कल बैक, अच्छी लड़की, अच्छी माँ. तो अब खुद को उस रोल में डाल के, वेयर आई हैड टू एक्चुअली बी एट अ प्लेस वेयर आई हैड टू डू एवरीथिंग, एंड खुद देखना मुझे कि एक औरत किस तरीके से सदियों सर्वाइव करती है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. टू सी हर इन अ लाइट कि शी इज़ नॉट जस्ट माई मदर, और वो एक अच्छी माँ शायद नहीं भी हों, लेकिन उनको किसने वो डिफ़ाइन किया है अच्छी माँ क्या होना होता है. और ये एक अच्छी माँ होती है जो आपको इमोशनली भी आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए जनरेशन ट्रॉमास भी तोड़े, आपके लिए आपका बाप अगर आपको छोड़ के गए तो आपका बाप भी बने, और अपने आप को अपनी दूसरी शादी भी ना करे. मतलब क्या ही कर सकती है आपके लिए एक अच्छी माँ, एक औरत क्या ही कर सकती है. तो आई थिंक हमें वो भी काउंट करना चाहिए कि उन्होंने कुछ ना ये तो कुछ एक किया फैक्ट है. है ना कि आपके पेरेंट्स के जितने भी अप थे या जितने भी अप नहीं थे, जो भी हो, हर बच्चा किसी न किसी ट्रॉमा से तो निकलता ही है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट पेरेंटिंग ईदर. सो क्रेडिट वेयर ऑब्वियसली क्रेडिट इज ड्यू व्हेन इट कम्स टू मदर्स. मतलब देसी माएँ गो थ्रू अ लॉट, और वही बात है, अगर हम इस तरह हैं तो इट्स बिकॉज हमारी माँ ने चूज किया था कि हम पढ़ाएंगे इनको. We और will put them through school, we'll बहुत try सारी to put them through college, go through that whole, make them independent. For me, I think मैंने, like, at least in my mom, I've noticed like she was much more of a feminist without knowing that she was a feminist when she was doing her job and everything. But after like a couple of years, and now that she's getting older, so she's getting more and more traditional. With where is why like the tension comes in. I'm like, आपने मुझे सिखाया है to think for myself, and now you Yeah, want me that to also. get married and have a baby. Sorry, that I did not get the memo of that. Yeah. And like, और इस ईमान में, and she'd be like, नहीं मैं नहीं चाहती तुम बस ख्वार ना हो पूरी जिंदगी. And I'm like, but life is to struggle. Like, if I am not struggling for something, for the next thing, for the next goal, for whatever, चाहे वो मुझे हैप्पीनेस लाता है, चाहे वो मुझे सैडनेस लाता है. आई थिंक माँ बेचारी यहाँ पे भी क्यूट होती है ना, वो कहती हैं कुछ भी ना हो इनको, कुछ भी ना हो. बट वो वही बात है कि like they also have to understand after a point as a human being too, so that they can also explore their life and like have new things and new experiences. क्योंकि पेरेंट्स बहुत सैड भी हो जाते हैं बेचारे जब आप घर छोड़ के जाते हो, because they do miss you and that you like Yeah. they get lonely and blah blah blah. सारा कुछ अपनी जगह सही है, but the conservatism that comes with age is also like so real. Period. Hi guys, we're like super hungry now. हमने ब्रेक ली थी क्योंकि खाना आ गया था और अब हम उसको खाने जा रहे हैं. So Gotta go. welcome back. We ate. We definitely ate. I mean, like, have you seen us? Like, Look at damn. girl. We were talking about how our parents get more conservative with age and how their expectations change. और अगर even if you have liberal parents, तो वो भी एक एज के बाद है बहुत डरने लग जाते हैं, I guess, life से. So yeah, what are your take? I think Danya has a lot of interesting points that we want to talk about, Abhi. Yeah, I think with this, when we talk about how our mothers used feminism in their own way, जो उनकी रिसोर्सेज थी और जो उनका अवेलेबल डेटा था, उससे उन्होंने जितना यूज़ किया फेमिनिज़म को, अब हमारे पास डाउन हुआ है. तो आई वांट आस्क यू गाइस कि आप लोगों के लिए फेमिनिज़म का मतलब क्या है? क्योंकि
ये वर्ड को इतना बड़ा बना दिया ना बिकॉज ऑफ द नैरेटिव दैट हैज़ बिन बिल्ट इन दिस सोसाइटी के ओ ये फेमिनिस्ट है तो मतलब भाई ये मर्दों को मारना चाहती है. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक लाइक what's feminism for you? What's the definition of being a feminist or of actively choosing feminism in your life? Okay, so for me, I definitely believe that equality, Definitely 100%. both roles have a different role to play. They are not the same. 100%. They're not the same. I'm speaking scientifically. Physiological characteristics जो हैं मर्द के और औरत के बहुत अलग अलग हैं, and with that comes the authenticity of being your own self, of being a man, being a woman, what kind of place in society you hold, what kind of place in your family, amongst your friends do you hold. For example, a woman's for example, it comes very naturally to a woman to be caring or kind or loving or being more in touch with their emotions. I also think there's this really horrible stigma that comes with suppressing your emotions, for men especially. Men's mental health, men should not talk, not cry, don't cry. You cry, you're a girl. Don't cry like a little girl. That's what they have told बचपन से लड़कों को, बच्चे, little boys. However, don't cry like a girl. And then it becomes problematic once you're grown up, because you don't know how to like, You don't know how to express आपको yeah, emotion दिखाना, emotion देखना. yeah. I think for me, feminism is equality. You being the most authentic version of yourself. Do you. Do what you think is natural to you. Do what makes you happy. I mean, go along the lines of not hurting anyone, Yeah. being kind, being genuine. आपको fake क्यों होना है भाई? Why do you have to like talk shit about your friends? एक सर्कल में, फिर दूसरे सर्कल में, फिर तीसरे सर्कल में. मतलब आप बच्चे नहीं हैं, आप adults हैं. We have 40-year-olds and 30-year-olds acting as if they are unaccountable for their actions. That's fucked Girl, up. girl. Girl, you're literally जितना आंटी अंकलों ने 14. मुआशरा खराब करके रखा है ना, उतना ये कोई जनजी शंजी किसी ने खराब नहीं किया. गरीब है बेचारी जनजी. ज्यादा से ज्यादा क्या 2 लोग जो है बम्बल करके डेट पे चले जाते हैं, कॉफी पी लेते हैं. पार्टियां कौन कराता है? आज सच सच रिवील करे, कौन कराता है पार्टियां? अंकल अमीर और अंकल. अमीर अंकलों के अंदर जो पार्टी करने का है ये ना, जिन्होंने अपने माँ बाप की सारी बातें सुनी, हमसे इनको मसला ये कि हम इनकी नहीं सुन रहे, पर फ्रस्ट्रेशन ये सारी अपने पैसों के थ्रू पार्टियां करा के जो है ना निकालते हैं. तो आपके लिए I have seen 40-year-old aunties give advice to 30, 25 plus boys कि छोटी बच्ची बसाओ, छोटी बच्ची बसाओ. यूज करके कर देना. मर्दों का तो यही होता है. आंटियां कह रही हैं ये. These are the advices they are giving. और आपको होता है कि आप, और फिर यही आंटियां मुड़ के आपको बाजारों में देख के कहती हैं कि वो हाय अल्लाह, वो भी उसी तरह आपको जज कर रही होती हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल जैसे अगर बॉयज और जो है ना लौंडे अगर आपको ताड़ है ना बाजार में, तो हर तो एक आंटी आंटी भी जो है ना देगी है. जज कर रही है आपको. हालांकि उस आंटी को भी वो ताड़ है, क्योंकि फर्क तो होता नहीं है ना उम्र का, ना रिश्ते का. No gender, nothing. ये फर्क नहीं होता. आपकी उम्र कितनी भी, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपने जैसे भी कपड़े पहने हुए हैं, जज तो आपको सब करेंगे. एंड कमिंग बैक टू फेमिनिज्म, इसी तरह करके हाँ, फॉर मी फेमिनिज्म इज के the freedom to choose and the freedom to experience for men and for women both, and for trans, whoever you happen to be. Hi. Sorry guys, our director distracted me. Anyways, as I was saying, इट डजेंट मैटर कि अगर आप बच्चा करना चाहते हो और अगर आपको वो लाइफ चाहिए, तो आपको किसी के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहिए कि आपने स्टडीज़ नहीं चूज़ की, या आपने जो है करियर नहीं चूज़ किया, या वट एवर द हेल, या अगर आपने चूज़ किया था नाउ यू चेंज योर माइंड, वट एवर द जो भी है. पर अगर आपने नहीं करना. और इसी बात से लाइक व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी, लड़कियों की सेक्सुअलिटी, आपको बचपन से ना ऐसे फूल की तरह ना, बस वही फ्लावर वाली जो शिटी एनालॉजी होती है, या मिठाई वाली जो एनालॉजी है, ठीक है,
फूल आपको छुपा के रखना है. They don't tell you anything about periods. They don't tell you anything about puberty. They don't tell you anything about what. बस हाँ, मर्दों को, हर मर्द को ना तुमसे एक ही चीज चाहिए होती है. क्या चीज चाहिए होती है ये नहीं बताएंगे. और फिर जैसे ही आपकी प्यूबर्टी की ना थोड़ी पीक वगैरह, मतलब मेन शुरू गुजर जाता है, यूर लाइक 15-16, नए नए आपके ना थोड़े बहुत रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी उम्र में होना स्टार्ट हो जाता. लेट्स बी रियल, मेरा तो आ गया था. When I was 15 मेरा पहला रिश्ता आ गया था. और फिर आपको होता है कि अच्छा पूरी जिंदगी, दिस इज अ टैबू टॉपिक, वी कांट टॉक अबाउट इट, एंड नाउ यू आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन मी टू गेट मैरिड, टू डू द डबल्स टैंगो, डू द डीड, हैव बेबीज. अब आपको मेरी सेक्सुअलिटी में इतना इंटरेस्ट हो गया, यू मेड मी फील सो स्केर्ड ऑफ हैविंग एन एक्सपीरियंस जो मुझे चाहिए भी नहीं. ठीक है. और अब आप चाहते हो कि मैं वो एक्सपीरियंस भी करूं, आपके 500 गेस्ट के सामने तैयार होके भी आऊं. ठीक है, सबको पार्टी भी कराऊं, सबको खाना भी खिलाऊं कि देखो हो गया, आई एम नॉट प्योर एनी मोर. I did it. आपको पार्टी कराऊं मैं, और उस पार्टी के लिए आप पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे. पढ़ाई के लिए नहीं होंगे. आपकी बेटी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए नहीं होंगे. हॉस्पिटल, सो मेनी फ्रिकिंग थिंग, ट्रिप्स, whatever, सब कुछ शादी की बात करोगे, शादी की बात करोगे, शादी की बात करोगे. सो इट डजंट फ्रिकिंग मैटर एट द एंड एनीवेज, क्योंकि आप बच्चे भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, दे आर नेवर गोइंग टू बी सैटिस्फाइड. It's never gonna be enough. Yeah, it's never, क्योंकि वही again like I think कि औरतों के लिए बस we just have to be good at everything you have, and we are always the parentified daughters. Like अगर आप एक बेटी हो एक घर की, तो आप माँ भी हो उस घर की, आप उस घर की बहन भी हो, आप उस घर की बीवी भी हो, और आप सारे रोल्स आपने ही प्ले करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, पोछे वाली, आप सब हैं. और सब फेमिनिज्म की, और जहाँ बात होती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, वो यहाँ पे फॉल करती हैं. आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म वी डोंट से, और स्पेशली हमारी औरतें जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में रह रही हैं, हमें इस चीज़ का राइट नहीं चाहिए कि हमें निक्कर पहन के घूमना है. मतलब मेरा पर्सनल कहने का मकसद ये है कि मैं जब फेमिनिज्म की बात करती हूँ, व्हेन आई से आई एम अ फेमिनिस्ट, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेरेब्रल अपॉर्चुनिटीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं एजुकेशन का राइट मेरा वही होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं 50 साल की हो गई हूँ और मैं फिर भी एक जॉब करना चाहती हूँ, आई हैव अ पैशन, तो फिर मुझसे ये नहीं पूछा जाए कि ओ तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम ये भी कर रही हो, कैसे? आप मैरिड हैं? आप मैरिड हैं, और अगर आप मैरिड हैं भी तो दैट्स व्हाट फेमिनिज्म इज़. और अगर आप मैरिड, और अगर मैं ये चूज़ करती हूँ कि मैंने शादी करनी है बट मैंने एट द सेम टाइम जॉब भी करनी है, मैंने बच्चे भी करना है, तो आप जब एक मर्द से ये बात सवाल नहीं करते, मर्द के बच्चे होते हैं, मर्द जॉब भी करता है, आपने कभी मर्द से ये सवाल किया है कि तुम 50 साल के हो गए हो, तुम जॉब भी करते हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम बच्चों को टाइम कैसे देते हो? मर्द से आज तक नहीं हुआ ये सवाल. तो एक औरत से क्यों होता है? जब when women like us come out and say we're feminist and we're talking about feminism, Taboo. सॉरी गाइस, बिल्लियां लड़ रही है. that's cat fight, let's cat fight. सॉरी ऑडियंस. इक्वालिटी मांग रही है, वो भी कह रही है कि भाई बिल्लियों की मर्जी है, जिसके पास जा रहा है मेरे अंदर बिल्लियां की हर बच्चे. बिल्लियां बड़ी टाइट लगती हैं भाई मुझे, हमें बिल्लियां होना चाहिए. लाइक गिव नो फक्स गिवन, मतलब Go for it. बिल्लियां होना चाहिए मुझे लगता है. या पहले मेरा सपना होता था कि काश में लड़का होती है, अब मेरा सपना होता है कि काश में बिल्ली होती है ना. यार काश मैं लड़का होती. फक दैट, बिल्ली इज बेटर. लड़कों बेचारों की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सच बात करो तो. लेकिन यार हम इंडिपेंडेंट हैं, पर हम पे कम से कम ये प्रेशर उस तरह से तो नहीं है ना कि हमने ट्रूली हम करना चाहते हैं. वी वांट टू बी राइडर प्रोवाइडर फॉर आवर पेरेंट्स बिकॉज वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स. Let's talk about how much pressure is put on the मर्द bro. हमारी societies के इतना pressure लगता है उन पे. यार यही बात कर रहे हैं कि मतलब एज गर्ल्स वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर अर्निंग मनी, लेकिन हम पे एज सच प्रेशर नहीं. हम करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव बैक टू आवर पेरेंट्स, वी वांट टू गिव देम अ रिटायरमेंट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वी हैव दोस ड्रीम्स एज वेल. पर ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने वो हम पे डाला. And that's where feminism. बॉयज की कितनी फटती होगी वैसे, ऑनेस्टली. पैसे कमाने हैं, बिल पे करने हैं, बच्ची भी लेके आनी है. I think I missed something. So yeah, feminism is That's where really feminism important. steps Yeah. in. I feel like if a guy or if a man, if a male does not want to work,
तो फिर आप नहीं करें भाई, आप do whatever the hell you want to in the boundaries. In the boundaries, what are those boundaries? Define the boundaries. यार अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी काम करे और आप बेबी संभालो तो इट्स ओके ना बोले उस बेचारे को जन मुरीद। अब उसका कसूर थोड़ी है कि आपके जब बेबीज हुए थे तो आपके हस्बैंड ने जो है ना आपकी हेल्प नहीं की और कभी नैपी नहीं चेंज किया। उसका कसूर सो फकिंग व्हाट, उसको करने दे। व्हाई कांट यू जस्ट बी हैप्पी कि भाई मेरा बेटा कर रहा है और जो है ना दे ही इज दैट जोड़ू का गुलाम, ऑल ऑफ दीस फकिंग थिंग्स दैट यू सी। इसलिए भी डर लगता है यार शादी करने से, सास ऐसी निकली तो क्या करोगे। To the men, to all the men who don't help their wives change your kids' nappies or feed your kids, I fucking hate you guys. Yeah, like go out. हग योर Change किड्स करो. मैन, होल्ड योर किड्स। शादी पे संभाल लिया करो कभी। तुम्हारी बीवी इतनी मुश्किल से तैयार होती है, इतनी मेहनत करके तैयार होती है, वो बच्चे का बैग भी पैक करती है, दूध भी बनाती है, सब कुछ करती है। तुम जो उसको 5 मिनट उठा नहीं सकते शादी पे। दुल्हन के लहंगों पे चढ़ रहे होते हैं बच्चे, टल्ली हुए हुए, टल्ली के टल्ली हुए हुए होते हैं। और वो एक्टिंग कर रहे थे स्टॉप इट। लेकिन ये भी आई थिंक कि हम ये कितना मज़े का एक इमोशन है कि हम एक सेकंड में हम एक मर्द के फेवर में बात करते हैं कि वो बेचारा मर्द, और दूसरी सेकंड में हम कहते हैं कि मतलब यार, और ये इसीलिए मुझे डाइकोटमी लगता है ना कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है ना। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इक्वालिटी, इसीलिए ज़रूरी है। आई थिंक वी नॉट, हमें नहीं चाहिए भाई नंगे घूमना। प्लीज अंडरस्टैंड दैट और फेमिनिज्म जिसको चाहिए आपके लिए उसको भी अच्छा, चाहने दो। वो चाह रहा है तो करने दो उसको, वो भी करने दो उसको, जिसको नंगा घूमना है उसको नंगे घूमना है, यार पर वो हमारी दूसरी बैटल है यार। दैट्स द बैटल, वो बहुत बाद में हमने लड़नी है। लेकिन पहली बैटल है, सॉरी मेरा एक पाकिस्तानी मर्दों से सवाल है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई हम इतनी जदीद जो है ना फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं भाई, इंटरनेट पे सब मिल रहा है, सब जो है ना सर्च करके निकाल लोगे, हर तरह की बच्ची देख सकते हो, फिर भी तुम लोगों को हमें ताड़ना है। क्या मसला है? ये कौन सी प्यास है पाकिस्तानी मर्द की जो बुझती नहीं है? Oh, ये कौन से डेप्थ्स ऑफ फ्रिकिंग हेल से आपकी इतनी प्यास आई है? कौन सा ये टेस्टोस्टेरोन है? testosterone. आई गेट इट, बहुत सप्रेस्ड हो, पर भाई लाइक you can just watch it and like do whatever. Your business is your business, not my business, and that's all I want it to be. Keep your business your business, don't make it my fucking business, don't make it her business or her business just because she's alive. have you ever received dick pics? I don't want to talk about it. Unsolicited dick pics. अब हमारा कैमरा मर गया गाइस, हमारा एक कैमरा मर गया हमारा गाइस। कैमरा भी हम पे मर गया है गाइस, कभी लड़के मर रहे हैं, कभी कैमरा मर रहे हैं। Everything is getting hot in here. Hey guys, we're back. We're back. We're back because our cameras died, which happens and it's pretty normal. So don't be judging us out there if this shit is getting cut. All right, like damn. Okay, what were we talking about? Feminism, equality. We're talking about getting dick pics. Yeah, we're talking about ये पाकिस्तानी मर्दों की बहुत उनकी गर्मी इतनी होती है, गर्मी। खत्म ही नहीं होती, Yeah. और बड़ी खुलेआम होती है वो गर्मी, बड़ा प्राउड होते हैं वो उस गर्मी पे। Lack of sex education does Yeah, this. yeah, आप yeah, इतना yeah, stigmatize करके आप रखते हो, you have instilled, our society has instilled so much fear and so much pain into these things that are so important to talk about, but we don't talk about them and random girls get dick pics. Yeah. Have you ever had that talk? Like आपको कब वो first talk थी कि okay so ये होता है ये, We're और ये आपके unpacking. फूल के We're अंदर unpacking. एक तितली जाएगी और आपका रस चूस के निकल जाएगी। So what was that first conversation for you? Oh my god, my first conversation, guys. It's about to get real. Oh my god. My mom had caught me talking to my boyfriend. At that time, I was so young. मैं पता नहीं 12-13 साल की थी. Allah. Oh my god. Oh my please. God. Girl, and this woman, my mother, my great mother, who I Lovely mother is genuinely have been apart from her for a very long time. But I also think, and now I understand that so wholeheartedly, that she
was also struggling, and she was her own woman. She was raising 2 kids all by herself, and the patterns and everything that she learned, generational trauma वगैरह वो अपने साथ उठा रही थी वो, मतलब लेके चल रही थी वो जिंदगी में, and it's sad, but at the end of the day she is my mom, and like I'll always have like a soft spot for her definitely. तो खैर वो भी वहीं से ही आ रही थी कि बेटा थोड़ा सा लड़कों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये होता है इनके शलवार में, इनके पैंट्स के अंदर ये चीज होती है बाकायदा, and they're gonna use it on you, and you have to be careful, you have to be so careful, और अपने आप को बचाना है तुम्हें, और ये चीजों में पढ़ना नहीं है। ब्रो मुझे पता भी नहीं था कि चल क्या बात कर रही है, मैम रो रही हैं, मैम रो रही हैं। हाँ वो रोती हैं। I'm 13. What are you talking about? I just got my period. I don't know why I'm bleeding. Why am I bleeding? Why am I bleeding? And what are you telling me to not have? I don't even know what you are telling me to not have. Can you tell me what it is first? मैं हाथ नहीं पकड़ूं उनका। मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सॉरी, प्रेग्नेंट होना क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं आज तक। इतना तो कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं है, बस बेटा बस ख्याल रखो, अब तुम्हारी उम्र हो गई, दैट्स द कॉन्वर्सेशन वी हैव। अच्छा, ख्याल रखो, मेरे ख्याल रखो, उम्र हो गई है भाई, उम्र हो गई है तुम्हारी, बस ख्याल रखा करो। आपके टांगों के बीच में जो है ना वो आपकी इज्जत है, उसका ख्याल रखने के लिए हमें बचपन से ही। आपकी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत कोई नहीं होती, ठीक वो है ना? सबकी इज्जत है। वो आपकी सबकी जो इज्जत है। आपकी टांगों के वो बीच में वो हमारी आपकी इज्जत इज्जत नहीं है। है, वो पूरे माशरे की इज्जत आपकी टांग, पूरे माशरे की इज्जत मेरी टांगों के बीच में क्या कर रही है भाई? जो बात है किसकी इज्जत हो गई है जो Get out of here, टांगों के get बीच out में of आ गई है here. भाई? I don't want Guys. you there, please. हेलो, ये किसकी इज्जत है भाई? ये यहाँ क्या कर रही है? लाइक क्यों? और ये बड़ी फटा बात है कि इन चीजों से इज्जत नहीं आपकी खत्म होती। जब आपकी बेटी को कोई मारता है या जो जब बात उसका रेप होता है तो आपकी इज्जत खत्म हो रही है। somebody fucking went through something. उसकी वहाँ पे मेंटल सैनिटी खो चुकी है, फिजिकली वो सब मेंटली इमोशनली टार्निश हो चुकी है और इज्जत आपकी गई है। That's insane. That's freaking insane. आपके लिए क्या है वैसे? मैंने उनसे पूछा तो आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी, आपकी फर्स्ट टॉक क्या थी वैसे? बताया तो है बेटा तुम्हारी उम्र हो गई है। ख्याल तुम्हारी रखा उम्र करो। हो गई है। That's That's it. it. और और आप अब लोगों वही को ना जब पहली बात दफा जो मैं पहले कह रही थी कि अब बस एकदम से बहुत प्रेशर है कि नहीं शादी करो, बच्चे करो। This is the talk that we've had. कि एक हमारी कैसे होते हैं बच्चे ये कोई नहीं बताएगा आपको। I'm low-key glad my family hasn't pushed me to like get married. get married and stuff. I'm very grateful for that because genuinely मेरे दोस्तों की my girls who I cannot live without, my girls who are my core, my girls who give me my essence, who make me who I am today, who genuinely make me who I am today. Y'all know who you are. Y'all know who you are. I'm filled with so much rage and so much disgust जब मुझे पता लगता है कि भाई इन लोगों की बातें चल रही है। I'm like, bro, अभी यूनिवर्सिटी खत्म हुआ है, आप जिंदगी आपकी शुरू नहीं हुई है, आपको शादी करवाना है अपने बच्चे की, मतलब क्यों? But also to the girlies out there who have gotten married at such a young age. I have a really close friend who has gotten married at such a young age. Good for you, great for you, happy, so happy for you. If Because it was that's your what you want, choice, yeah. If that's what Yeah, you that's want, what you don't want. be imposing shit. Men be out here imposing shit on us. Women out here be imposing shit on us. Like, girl, chill. Chill. I don't want to get married. I don't want to change diapers when I'm 18. जो बात है यार. Please. और वो I also want to ये अगर जो ये होता है ना जब आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी शादी हो जाती है और स्पेशली जब आपकी चॉइस नहीं है वो, because my mother was a very young mother, right? She was 16 when she got married, and she had me when she was 17. Okay. Like literally, girl, मैं जब 17 साल की थी तो मुझे तो अपना नहीं पता था कि मेरे बाल कर्ली हैं या स्ट्रेट हैं, तो मैं बच्चा कैसे पैदा कर दिया था मेरी माँ ने उस एज में। और फिर जब आप एक यंग मदर होते हो या यंग फादर भी होते हो, यंग पेरेंट होते हो, तो आई फील लाइक देयर इज सो मच दैट यू आर लर्निंग योर सेल्फ, और फिर वो बच्चे को सहना पड़ता है ना। फिर आपने एक 16 साल की बच्ची की शादी तो कर दी है, पर वो 16 साल की बच्ची खुद ही अभी तक नहीं ग्रो हुई है, वो खुद बच्ची है, उसने अपनी ज़िंदगी नहीं जी है, तो वो एक और ज़िंदगी को कैसे ज़िंदगी दे सकती है?
जब उसको पता ही नहीं कि जिंदगी को कैसे जीना है। ये तो वही ये नैरेटिव है ना कि लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कोई लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर नहीं होती, आप उनको जबरदस्ती मैच्योर कर रहे होते हैं That's so true. क्योंकि यू वांट देम टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज जस्ट एज मच एज यू वांट एज men want to marry someone young। ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्दी से जाए, बी समवन एल्सेस प्रॉब्लम। हाँ आपको बचपन से ऐसे रेस कर रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू बी समवन एल्सेस प्रॉब्लम, दिस इज समवन एल्सेस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हमें ना तंग करो, डू दिस अपने लेटर, डू घर दिस जाओ। लेटर, अपने घर जाके करना। हाँ, अपना घर। आपको हाँ। ये जो हमें बचपन से बताया जाता है, एक औरत के लिए मुआशरे में घर क्या है, मैं लाइक क्या है, हम क्या डिफाइन करते हैं एक मुआशरे में औरत के घर को। क्योंकि बचपन में हमें ये बोला जाता है कि ये अपने घर जाके करना, अपने घर में जो हमारे माँ बाप का घर है उसमें हमें ये बोला जा रहा है कि अपने घर जाके करना, वो घर जो हमें पता ही नहीं है कि कब आने वाला है जिंदगी में। अनसर्टेनिटी और पैदा कर रहे हो आप। पता है मतलब मैं हमेशा ही आउट ऑफ प्लेस ही पूरी जिंदगी फील करती रहूंगी ना कि मेरा घर क्या है। और जब मैं अपने घर जा रही हूँ शादी करके, तो उधर मुझे ये बोला जा रहा है कि ये तुमने अपने घर नहीं किया, Oh my God, the realest thing. तो The मेरा घर realest कहाँ thing. है? Where तो do I belong? where do I Where do I belong? belong? मेरा घर कहाँ है? मेरी किस चार दीवारी को मैं अपना घर बोलूँ? अगर मेरे माँ बाप का घर मेरा नहीं है, और अगर मेरे शौहर का घर मेरा नहीं है, और उसके बीच में मेरे लिए आपने कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा है, कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने कि मैं अपना घर बनाऊं। और अगर मैंने अपना घर बना लिया है जाके, अगर मैंने तो बहुत ही ज्यादा ही वो अपने आपके लिए अंदर, कभी इनफ नहीं होगा, दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। हाँ अगर अगर हाँ मतलब आप it's अपना घर आपने पहली बात तो कैसे ही बना लिया ना, मतलब अपना घर आपको एक मर्द की बहुत ज़रूरत है ही इस सोसाइटी में। I hate और that अगर so much. I कोई hate बना that ही so ले, much. बिकॉज आई मूव्ड आउट, ठीक है, और मैंने अपना घर बना ही लिया लाइक, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया टू मेक दैट हाउस, बट स्टिल मेरे लिए वो लाइन्स अभी भी काफ़ी ब्लरी हैं। मुझे नहीं पता मेरा घर को, मुझे बचपन से बताया हुआ है कि आपका घर तो शौहर का घर होगा। तो जो मैंने बना लिया है, मुझे इतना, अब वो किसका है? वो किसका है जो एंड मैंने एज बना लिया है? अ साइड नोट, एज अ सिंगल वुमन, चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप सिंगल मदर हो, चाहे आप बस एक बैचलर हो हमारी तरह, इट्स सो फ्रिकिंग हार्ड टू इवन फाइंड अ प्लेस टू रेंट। Oh my इट्स सो हार्ड, नोबडी वांट्स टू रेंट टू यू, yeah, नोबडी। तो वही बात आ जाती है कि कहाँ है फिर मेरा घर, कोई बनाने भी नहीं दे रहा। औरत अगर अपना अकेले घर ले रही है तो वहां पे रोटी खाना ही खुलेगा क्या? या क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि इस माशरे में ये नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है कि एक औरत अपना अकेले जाके घर नहीं ले सकती, उसको एक मर्द की ज़रूरत है। तो आपको ये बताया किसने है? एक मर्द ने ही बताया आपको। और यही है हमारी लाइक पूरी बात, यही है हर चीज़ का मद्देनजर, यही है कि मर्द ने बताया जो है वही एक औरत को करना है इस वही चलेगा। सोसाइटी बिकॉज हम में। लोग वी डोंट वांट टू टेक द टाइम टू फिक्स आवर बॉयज ना। या एंड हम लोग औरतों को वही ना, वही वाली बात है कि वो women are easier to subjugate, blah 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 blah। अब जब करते हैं नहीं यार। कर रही औरतें subjugate, तो you're blaming feminism or you're blaming western agenda या whatever the heck। ये नहीं आप बिलीव कर सकते 2 मिनट के लिए कि शायद नई औरत भी कह सकती है कि मैंने नहीं सहना। गाइस, गाइस वो देखो मक्खियाँ, Bro, proper. वही तो हम मोटी मोटी हैं मिठाइयाँ है ना, Guys, in the first मिठाइयाँ है half. ना, बुरखा में ना, girl, that's why you know it, बुरखा में डालो अभी नहीं आएंगी मक्खियाँ, you know it, आपको पता है यार, this is like no brainer बात है, खुली हुई मिठाइयाँ हैं हम, तो आने ही है मक्खियों ने। लेकिन हाँ अपना घर हमारा कोई नहीं है इस माशरे में, और टू इवन गेट आउट एंड बिल्ड अ हाउस। और उसके बाद वही अगेन मैं उस बात पे आऊँगी कि मर्द तो हमें करते ही हैं, और ये कितना यार हमने इस बात को लेके करना है कि मर्द ने ये कर दिया, मर्द ने वो कर दिया, मर्द ने, अब हमने क्या करना है यार? हमने, अगर एक औरत को इतना गिल्ट होता है कि वो अपने घर से निकले, आई कैन नेवर गेट आउट ऑफ द गिल्ट दैट आई हैव ऑफ लिविंग माई हाउस। I think definitely adding on to what you're saying about the whole moving out perspective. So I've been floating around this idea मेरे घर पे कि I want to move out, want to be an independent girly, want to live on my own sort of. I want to be able to provide for myself. I want to be able to live a certain life without any restrictions, without any manipulation, without any gaslighting कि भाई मैं आपके लिए ये कर रही हूँ तो आपको मेरे लिए ये करना। I think a girl moving away, my perspective at least, a girl moving away from a house is taken in such a, आप हमें छोड़ के जा रही हैं, आप ये कर रही हैं, आप इज्जत नहीं करती है फैमिली को, आप फैमिली को टाइम नहीं दे रही हैं, आप फैमिली पर्सन हो ही नहीं, आप फैमिली पर्सन हो ही नहीं। डोंट मैटर हाउ मच यू डू फॉर योर फैमिली, इट्स नॉट गोना बी इनफ। नो मैटर हाउ मच यू गिव,
it's not going to be enough. So at the end of the day, you're telling me that आपको move out करना है तो आप shitty person हैं, आप family को respect नहीं कर रही हैं. Where is that part of life, as you call it, that would be, hey girl, I'm proud of you. I'm proud of you for moving out. I'm proud of you for taking that first step. I'm proud of you for even having that courage to take that first thought or take that first step कि आपको जाके आपको independent life जीनी है. You want to live a certain way without anyone being like, anything you do will not be good enough. If you're living under our roof, you will live by our rules. Our rules. If you're not giving money at home, guys, please. Does anyone have this experience कि आप घर पे पैसे आप provide नहीं कर रहे हैं, or that is just not enough? आपको मतलब you have to give in money, otherwise your worth will be nothing. No matter how much you're there for them emotionally, or how much you're there for them physically. अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो घर पे, guys, comments में serious. औकात तो आपकी I think वैसे मर्दों नहीं के है, साथ- वैसे भी पैसे नहीं कमाते अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में आपकी कोई औकात नहीं होती. यार मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ मर्दों के साथ ज़्यादा होती है क्योंकि वही है कि patriarchy has affected them in that way कि they have to be the strong one and the provider and not the weak one and all of that. But औरतों के साथ भी at the same time ये होता है, और अगर औरतों के साथ ये नहीं होता, अगर पैसे वाली, मुझे जो ये लगता है कि इट्स वेरी अनसेट कि एक औरत को इमोशनल लेबर हर जगह देना पड़ता है, इवन इन फ्रेंडशिप्स. अगर हमारे मेल दोस्त हैं तो वी वॉन्ट इवन रियलाइज कि कितना इमोशनल लेबर हम उस दोस्ती में दे रहे होते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे भी दोस्त हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि वो अच्छे दोस्त नहीं होंगे, पर एक औरत के साथ जो फिगर में डाल देते हैं. हाँ, ऑटोमेटिकली आपको वो आप वही ना, एक औरत एट द एंड ऑफ द डे वो उन रिश्तों से डिफाइन हो रही है जो सोसाइटी ने डिफाइन कर दी है. या तो एक औरत माँ है, या तो बहन है आपकी, या फिर वो आपकी बेटी है. अब आप किसी, अगर आपका कोई मेल भी फ्रेंड होता है तो आपको कुछ किसी लाइट में तो देख ही रहा होता है, तो हमें पता ही है एज वुमेन क्या, तो वो आपको उस लाइट में देख रहा होगा कि क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली इन दिस सोसाइटी, ब्राउन सोसाइटी, प्लेटोनिक फ्रेंडशिप्स का जो आइडिया है वो इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम लोगों में है. तो या तो आपको अपनी बहन की उसमें देख रहा होगा लाइट में कि ये मेरी बहन है, तो वो आपको उस तरीके से इमोशनल लेबर उस दोस्ती में देना पड़ेगा. और आपको भी नहीं पता होगा आप दे रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो. या तो फिर वो आपको अपनी एक मदर वाली उसमें लाइट पे देख रहा होता है, या तो फिर आपको वो अपनी Mommy issues. तो मुझे लगता है कि औरत को हमेशा हर दोस्ती में, या वो माँ हो या वो बेटी हो या दोस्त हो, कुछ भी हो, उसको इमोशनल लेबर प्रोवाइड करना पड़ ही रहा है. और अगर वो इमोशनल वैल्यू, जो कि हम कहते हैं कि एक औरत इमोशनल वैल्यू ऐड करती है एक रिलेशन में, वो नहीं लेके आ रही है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है. फिर तो वो कैसी औरत है? इफ़ यू नॉट केयरिंग, इफ़ यू डोंट केयर अबाउट अदर पीपल, तो कैसी औरत हो फिर? तो ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम सोशल नॉर्म्स. अजीब करना है यार हमें. वी डोंट वांट टू बी केयरिंग. फिर क्या? वी डोंट वांट टू केयर अबाउट यू. दैट डजंट मीन और सोशल नॉर्म्स यही होते हैं भाई, चेंज होते हैं टाइम के साथ, इसीलिए वो सोशल नॉर्म्स होते हैं. जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, जैसे हालात बदलते हैं, लोग बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है. और आई एम श्योर अभी कुछ सालों बाद जो है हमसे छोटे जो होंगे वो बोल रहे होंगे यू डोंट नो शिट, एंड दे विल बी राइट, बिकॉज़ आई डोंट नो शिट, आई एम टू ओल्ड टू केयर नाउ. या ट्रू. लाइक एक पॉइंट के बाद आप गुस्सा कर करके ना उस लाइफ पे और लोगों पे थक भी जाते हो, बिकॉज आपको समझ आ जाती है कि चीज़ें तो बदल नहीं रही, और अगर बदल भी रही हैं तो मतलब थोड़ी थोड़ी इनफ क्या, चलो आपको थोड़ा सा सांस आ रहा है. Real thing you can actually not be caring though. I feel like Obviously never not be caring, but थोड़ी सी आपको I think यार how do you keep living then? Because the rage becomes so consuming और आप इतने bitter होते जाते हो कि just being is hard. yeah. और आप कर रहे हो, आप घर वालों से भी फाइट कर रहे हो, आप सोसाइटी से भी फाइट कर रहे हो, आप अपने आप जॉब से पे भी भी fight अपने कर आप रहे से भी फाइट कर रहे हो. मतलब देखो, इफ इट वाज ट्रूली बस ये कि आप घर पे बैठे हुए चिल कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, तो बस ठीक है. आई डोंट ब्लेम वुमेन दैट
do If that want works that for you, life. if that works for you, it works ठीक for है, you. अगर आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है घर पे और आप जो हो ना कि कहते हैं पापा की प्रिंसेस भी हो पापा की और परी? आप जो हो हस्बैंड की भी आयशा परी हो, princess, हाँ Princess आप Aisha. अगर आयशा प्रिंसेस है, आई वुड लाइक टू से आयशा प्रिंसेस, आई एम jealous of you, but everyone cannot have those same privileges, or some of us need to fight the good fight, but it's also okay, like let the other people come and like do their version of it. Yeah. क्योंकि वो चीज़ इवॉल्व भी तभी करेगी, एक पॉइंट के बाद हमारी जितनी भी आइडियाज है वो रिडंडेंट हो जाएंगे, Definitely, definitely. तो एंड दैट्स व्हाट आई होप फॉर एज वेल, बिकॉज अगर रिडंडेंट होंगे तो आई फील लाइक थोड़ा सा चेंज भी आएगा, हाँ। बिकॉज तभी जब तक न्यू थ्योरी के लिए स्पेस नहीं बनेगा तब तक वो आएगी भी नहीं. बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक स्पेस नहीं बनेगी वो नहीं आएगी द चेंज. बट आई थिंक एज वुमेन इट्स नॉट एज मच लाइक लर्निंग एज इट इज़ अनलर्निंग. हम Oh my God, हमारी yes. जनरेशन के लिए स्पेशली, क्योंकि अवेयर भी तो है ना हम इतने. बहुत तो भाई the- नहीं होना इतना नहीं aware, होना. नहीं होना बहुत हो गया. इग्नोरेंस इज ब्लिस. और जब हम नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं और हम देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, हम इतने अवेयर हो गए हैं ऑफ द थिंग्स, तो आई थिंक वुमेनहुड अब is not, you know, right now is not as much as about learning as it's about unlearning. जो सारी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं कि ये होता है औरत होना, ये होता है औरत का मयार ये है, और एक औरत होने का, एक अच्छी औरत होने का ज़ाब्ता ये है. उन सब चीज़ों को भुलाना जो है ना अब हमारे लिए, आई थिंक दैट्स आवर नेक्स्ट फाइट. कि ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ें, वो नैरेटिव हमें दिया गया था, इट वाज पास्ड वो नहीं डाउन. चलाना भाई. दूसरों के shit के साथ साथ अपनी shit को भी फेस करना, और इसी से a very good note to wrap up. और हम नहीं करते यार मर्दों को, इट लिटरली We लाइक want you to win. हाँ, We ये want सब you to बात win. करी थी, अगर मर्द हो सकती तो यह भी हो सकती, इसी बात पे बाय बाय. Bye bye. I would never be a man. I would never be a man.